Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's explore geography. Today we will discuss the second chapter of class 8 population dynamics. आज हम लोग क्लास 8 के सेकेंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन डायनामिक्स. सो what is population and what is population dynamic? We have to know at first what is population. Population means the total number of people live in a particular area. Okay, एक पर्टिकुलर एरिया में जो टोटल नंबर ऑफ पीपल रहते हैं उसे हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं. ठीक है. एंड डायनामिक्स का मीनिंग क्या है? डायनामिक्स मीन्स विच इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली और कंस्टेंटली. सो लेट्स सी व्हाट इज पॉपुलेशन डायनामिक. Population dynamic is a branch of science that deals with the size and age composition of population as dynamical process is called population dynamics. So ये एक साइंस का एक ब्रांच है. ठीक है. ये साइंस का एक ब्रांच है जिसमें क्या हो रहा है? which deals with the size and age composition. Age composition means according to different age we are discussing about different age. Suppose 16 years age how many people live, or 17 years age how many people live, which is continuously changing. Population, total number of population all time ये change होता है. ठीक है. आज जो काउंट है, अगर हम लोग आज पॉपुलेशन काउंट करें जितना रहेगा, कल अलग हो सकता है, परसों अलग हो सकता है. सो कंटिन्यूअसली इट्स एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन, इट्स साइज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डायनामिक्स. ओके. पॉपुलेशन कैन नॉट बी स्टैटिक, इट कंटिन्यूअसली चेंजिंग. इफ आई विल टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ इंडिया सेंसस डेटा 2021 में 2001 में जो पॉपुलेशन था 2021 में it has increased, and next 2021 it will increase more. Okay, continuously it will change. So when we will discuss about this chapter population dynamic, we have to also discuss about density of population, distribution of population, age sex composition, overpopulation, underpopulation. One by one we have to discuss about this. ठीक है. So at first we have to know what is population density. Density of population or population density. So the number of people live per unit area is referred to as population density. एक particular square kilometer में जितने सारे people रहते हैं in a particular year also. ठीक है. Suppose you live in a area, suppose हम लोग यहाँ पर रहते हैं, ये जो total area है इसका जो टोटल एरिया कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? यू नो दैट लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके. ये मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग एरिया. देन आफ्टर कैलकुलेटिंग एरिया वी विल राइट एट फर्स्ट द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिव ऑन दैट एरिया. ये जो एरिया है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने रहते हैं? सपोज यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पीपल 100 रहते हैं. ठीक है. एंड द एरिया ऑफ दैट प्लेस इज सपोज 20. ठीक है. सो पॉपुलेशन डेंसिटी कितना होगा? सपोज टोटल नंबर ऑफ पीपल लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया इज 20 एंड द एरिया ऑफ दैट रीजन इज 20. सो द पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी 5 person per square kilometer. Okay, square kilometer. So person per square kilometer is the by person of square kilometer we calculate the number of density. Actually density does not have any unit because it is a ratio. So but we calculate like this: person per square kilometer, person per square mile. By this we can calculate population density. ठीक है. अब population density हम लोग क्यों कैलकुलेट करें? Why we are calculating population density? Because from population density we can classify any region into 3 parts. पॉपुलेशन डेंसिटी के द्वारा हम लोग एनी रीजन, एनी कंट्री, एनी स्टेट, एनी सिटी ब्लॉक्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. विच आर द 3 पार्ट्स? दिस 3 पार्ट्स आर डेंसली पॉपुलेटेड, मॉडरेटली पॉपुलेटेड एंड स्पेयर्सली पॉपुलेटेड. ठीक है. डेंसली मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. ओके. लाइक कोलकाता और एनी डेवलप एरिया where population is very density is very high or
the area which is very crowded. Moderately dense population, that means this is greater than, it has population greater than sparsely population but less than this densely populated. ठीक है, moderately populated. And sparsely populated का मतलब है this is actually dispersed. Suppose here is one settlement, another will be again here, and another will be here. So distance between the settlement is very far away, and here basic amenities are not available. That's why we can see sparsely population. Okay, so ये जो population density है, it is also dependent on the type of climate or topography or the different economical or social character or different basic amenities which are available on that particular area. So on the depending of these factors or indicators, these population densities vary. ये population density vary करता है different types of जो determinants है और जो factors है उसके ऊपर depend करता है. So ये जो distribution है इसके बारे में हम लोग देखेंगे. उससे पहले हम लोग ये जो मैप है इससे ये डेंसिटी को समझने की कोशिश करेंगे. सो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, ये जो डार्क रेड कलर्स है, दिस इंडिकेट वेरी, that means densely populated area. Okay, dark color indicate densely populated area, and you can see that little bit light red, this area you can see these are the moderately populated region, and this pinkish color tone of red, this is known as sparsely populated region or dispersed we can say. So ये जो sparsely population, moderately population, densely populated area हम लोग कहाँ पर देख सकते हैं? Let's see its actual location. Examples are very important. You have to learn the examples. Densely populated कहाँ देख सकते हैं? East Asia, South East Asia, Central Europe, Eastern, Central North America. Okay, so at first you have to know about the location of the continent. I am telling you in brief. This is South America. Okay, I am writing in short. This is North America. This is our Africa. Okay, the whole part, this is from this part also, this is Asia. ठीक है, this is Australia, and this part is Europe. Okay, so these are the major continents, and the last part, this is Antarctica. So these are the continents of our world. So हम लोग क्या देख सकते हैं, ये जो कंटिनेंट है इसमें देखो डेवलप एरिया कौन सा है. ये जो एशिया, दिस इज द, इफ आई विल कंसिडर अबाउट एशिया, दिस इज द पार्ट ऑफ एशिया. साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर पॉपुलेशन, एंड दिस इज ईस्टर्न एशिया. यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है. क्यों? बिकॉज यू नो एशिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो एम्यूनिटीज़ है वो अवेलेबल है, डेवलप्ड एरियाज भी यहाँ पर है, तो इसीलिए पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. नॉट ओनली दिस, इफ़ आई विल कंसिडर द फिजिकल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, टोपोग्राफी, ऑल दिस okay are very suitable for population, for developing population or for existence of population. That's why Asia is the most populous actually continent. So mainly Asia की साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में हम लोग ज़्यादा population देख सकते हैं. On the other hand, this is this is USA and part of Canada, USA and Canada, this is North America actually. So North America में हम लोग क्या देख सकते हैं, again population density ज़्यादा है. ठीक है, and few parts of Europe also we can see densely populated region. But on the other hand, sparsely populated we can see this pinkish color. Sparsely populated region जो South America की जो part है, South America is not developed continent, all of you know that. So South America की development ज़्यादा नहीं है, and mainly most of the part is covered with Amazon river. So यहाँ पर Amazon river और Amazon का जो forest area है, this is not suitable for population. That's why we can see here sparsely population. ठीक है, हम लोग sparse population यहाँ पर देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर possible नहीं है population density ज़्यादा increase हो, इसके लिए ये जो favorable condition यहाँ पर available नहीं है. ठीक है, so
हम लोग इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि पॉपुलेशन कहाँ पर हो सकता है ज़्यादा, कहाँ पर कम हो सकता है, इसके बारे में डिटेल एनालाइज करेंगे। सबसे यहाँ पर एक ब्रीफली कंसेप्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। सो मॉडरेट पॉपुलेशन कहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज सेंट्रल यूएसए, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल चाइना, डिकन प्लेटो, दिस इज इन इंडिया एंड साउदर्न रशिया ऑल्सो। On the other hand, sparsely populated region can be found here, equatorial region, polar region, desert region. By the name you can understand this equatorial region, polar region, desert region, all are not suitable for population, because polar region and desert region, these are the two extreme region, एंड इक्वेटोरियल रीजन जो है यहाँ पर ऑल टाइम हम लोग कहते हैं वेरी वेट, यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई है, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा हाई है। सो ये जो कंडीशन है, एंड सन रेज हम लोग जानते हैं ऑल द ईयर, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर सन रेज वर्टिकली हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो सुटेबल नहीं है ओके फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ और वेरी डेंसली पॉपुलेशन, इसके लिए ये क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल नहीं है। सो ये जो 3 एक्सट्रीम रीजन्स है यहाँ पर हम लोग स्पेयर्स पॉपुलेशन देख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन अबाउट द कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन। This is the main important question from this chapter, very important question. Factors affecting the distribution of population. कोई भी एरिया में जो population density है और population का जो distribution है वो उसके ऊपर कौन सा डिटर्मिनेशन है, कौन सा निर्णायक है और कौन सा फैक्टर्स को डिटरमाइन करता है, उसको अफेक्ट करता है। सो I have divided it into 2 parts. The first one is physical factor and the second one is man-made factors. Physical means ये natural factors है, man-made ये कौन सा फैक्टर मनुष्य सृष्ट है, ये artificial factors है जो हम लोग बनाए हैं, ठीक है। तो ये 2 parts में mainly हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसका factors को। इसके अंदर और भी बहुत सारे subdivisions है। So let's see what are the subdivision. If I will discuss at first the physical factors ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सो इसमें मेनली हम लोग देख सकते हैं टोपोग्राफी, द फर्स्ट सॉइल, सेकेंड थर्ड क्लाइमेट, फोर्थ वाटर एंड द फिफ्थ पार्ट इज मिनरल रिसोर्सेज। दीज आर द 5 पार्ट्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर में ये 5 जो फैक्टर्स है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो मार्क्स कर रही हूँ, इसमें इंपॉर्टेंस वाइज अगर हम लोग बोले तो इंपॉर्टेंस वाइज फर्स्ट होगा टोपोग्राफी, सेकंड होगा क्लाइमेट, ओके, थर्ड हो सकता है वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फोर्थ हो सकता है सॉइल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल बिकॉज सॉइल के ऊपर एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, एंड द लास्ट वन इज मिनरल रिसोर्सेज। सो लेट्स सी, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। टोपोग्राफी जो है, टोपोग्राफी को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। टोपोग्राफी मीन्स लैंडफॉर्म, राइट। हाउ इज द लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म कैसा है, माउंटेन, इधर इट इज माउंटेन और प्लेटो और प्लेन रीजन, ठीक है। माउंटेन रीजन है, ये प्लेन रीजन है और प्लेटो रीजन है। हम लोग जान सकते हैं कि अगर टोपोग्राफी माउंटेन रीजन है, अगर हाईली एलिवेटेड रीजन है तो वहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि माउंटेन रीजन में बेसिक कम्युनिटीज अवेलेबल नहीं है, राइट। एंड माउंटेन रीजन में जो बेसिक कम्युनिटीज का मतलब क्या है, सपोज ट्रांसपोर्ट, रोड, ओके, रोड ट्रांसपोर्ट और वाटर ऑल्सो, क्राइसिस ऑफ वाटर वी कैन सी इन द माउंटेन रीजन और द हाईलैंड रीजन। हम लोग देख सकते हैं वाटर क्राइसिस ऑल्सो, एग्रीकल्चर भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है अगर हाइट ज़्यादा हो, ठीक है। सॉइल भी कभी कभी इनफर्टाइल हम लोग देख सकते हैं, अगर ये एक्सट्रीम हाईलैंड में है तो क्लाइमेट भी बहुत सीवियर हो सकता है। तो इसीलिए जो टोपोग्राफी, अगर ये टोपोग्राफी वाइज अगर हम लोग हाईलैंड के बारे में डिस्कस करें तो हाईलैंड ज़्यादा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सुटेबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड इफ आई विल डिस्कस अबाउट द प्लेन रीजन, दैट मीन्स लाइक गंगा यमुना प्लेन और एनी प्लेन रीजन, so we can see that population density is very high there. Why? Because population density यहाँ पर हम लोग क्यों high देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो बेसिक कम्युनिटीज है सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है एंड वेरी इजी टू लीड योर लाइफ स्टाइल। हम लोग लाइफ स्टाइल को लीड करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी होता है देन माउंटेन रीजन। ऑन द अदर हैंड प्लेटो रीजन के बारे में अगर डिस्कस करें तो प्लेटो रीजन का जो सरफेस है, जो सॉइल है वो बहुत अनफर्टाइल होता है, ठीक है। वो अनफर्टाइल होता है, सूटेबल नहीं होता है
लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए, एंड क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत सीवियर होता है. सो टोपोग्राफी पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज क्लाइमेट. क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लाइमेट अगर सीवियर हो, दैट मीन्स हेवी रेनफॉल, हेवी क्लाइमेटिक हेवी टेम्परेचर लाइक इक्वेटोरियल रीजन, और एक्सट्रीम कोल्ड लाइक कोल्ड डेजर्ट रीजन और पोलर रीजन, और एक्सट्रीम हॉट लाइक डेजर्ट रीजन, हॉट डेजर्ट रीजन अगर हो, तो वहाँ पर पॉपुलेशन हम लोग नहीं देख सकते और स्पेयर्सली पॉपुलेशन देख सकते हैं. ठीक है. ऑन द अदर हैंड अगर क्लाइमेटिक कंडीशन मॉडरेट हो, और इफ इट इज we can find out the sufficient quantity of rainfall, then the population density will be high. For example, in Rajasthan अगर हम लोग देखें, ये जो डेजर्ट रीजन है, हॉट डेजर्ट, और ऑन द अदर हैंड लद्दाख प्लेटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट. वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी स्पेयर्स है. एंड इफ आई विल डिस्कस अबाउट गंगा यमुना प्लेन अगेन, जहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा है, बहुत सुटेबल है, और एनी कोस्टल रीजन जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन प्लेजेंट होता है, वहाँ पर डेंसिटी भी ज़्यादा होता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. फ्रॉम द पास्ट यू कैन सी human civilizations from where it is water is available. So nearness of water is very important, because अगर water resource और water का source अगर पास हो, तो वहाँ पर हम लोग not only we can get water but also we can cultivate और produce crops. like हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन भी कर सकते हैं हम. इट इज़ ऑल्सो नेविगेबल, ट्रांसपोर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ के लिए इंपॉर्टेंट है वाटर. सो वाटर रिसोर्स जहाँ पर देख सकते हैं उसके पास पॉपुलेशन ज़्यादा होता है. अगर वाटर रिसोर्स से दूर हो तो वहाँ पर हम लोग स्पेयर्स पॉपुलेशन देख सकते हैं. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सॉइल. सॉइल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सॉइल अगर इनफर्टाइल हो तो वहाँ पर कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है. तो सॉइल अगर इनफर्टाइल हो तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम होता है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, इफ द सॉइल इज फर्टाइल लाइक एलुवियल सॉइल और चाइनोजम सॉइल और ब्लैक सॉइल, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है. मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मिनरल जहाँ पर माइन होता है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मिनरल माइंस और द ओर एरिया, माइनिंग और एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होता है. क्यों? फॉर सीकिंग जॉब के लिए बहुत सारे पीपल वहाँ पर एंगेज होता है. एंड मिनरल जहाँ पर होता है वहाँ पर इंडस्ट्री भी फॉर्म होता है. ठीक है. ऑन द ये जो मिनरल है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हम लोग बहुत देखे हैं, सच एज आयरन इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, राइट. सो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सब ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है. सो मिनरल अगर जहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पर इंडस्ट्री को बेस करके और आयरन को और डिफरेंट ओर्स को माइनिंग के लिए बहुत सारे पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई होता है वहाँ पर. ठीक है. सो दीज आर द फ्यू फिजिकल फैक्टर्स विच affect the density or the distribution of population. Whenever you will write the name of the factors or we discuss the factors, you have to give the example. All time example देने की कोशिश करोगे, then marks अच्छा होता है. ठीक है. सपोज वाटर अगर हम लोग डिस्कस करें, क्लाइमेट डिस्कस करें, एनी पॉइंट व्हेन यू विल डिस्कस, यू प्लीज गिव एग्जाम्पल दोगे तो इसका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा होता है और मार्क्स भी अच्छा होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज two factors. Again, these are the man-made factors. I have divided at first physical and man-made factors. These two factors are man-made factors. ठीक है. The man-made factors we can divide into two parts: economic factors and historical factors. Economic factors and historical factors. Economic factors में क्या हो सकता है? अगेन एम्प्लॉयमेंट. इकोनॉमिक फैक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट हो सकता है. इकोनॉमिक जो फैक्टर्स है उसके ऊपर और एक फैक्टर्स भी डिपेंडेबल है, दैट इज सोशियो कल्चरल फैक्टर्स. ठीक है. इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ऑल दिस फैक्टर्स इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ, किसका डेवलपमेंट करता है? इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, अर्बनाइजेशन. ऑल सारे जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स सब इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेबल है. इकोनॉमिकली अगर कोई स्टेट और कोई एरिया डेवलप हो तो वो एरिया मोर अर्बनाइज्ड होगा. It will be more developed in transportation facilities and also industrial development will be possible there. So ये जो सारे जो चीज़ है ना, एक दूसरे के साथ चेन सिस्टम में रिलेटेड होता है. तो इसीलिए एक अगर डेवलप हो दूसरा भी डेवलप होगा एंड ऑल टोटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहाँ पर हो वहाँ पर पॉपुलेशन ऑब्वियसली डेवलप, जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी बहुत हाई होगा.
right? Such as example, I have given you example of USA, Japan, all these जो countries है, these are very developed, not only mainly these are economically very developed nation. That's why we can see densely populated. Okay, next one is historical factor. हिस्टोरिकल फैक्टर्स में भी पॉपुलेशन हम लोग देख सकते हैं, सच एज religious, different types of religious belief, okay, और the area which has historical importance. suppose कोई एरिया वहाँ पर historical कोई importance है तो वहाँ पर हम लोग population density high देख सकते हैं. such as अगर कोई temple हो, such as I'm giving example of वाराणसी, okay, वाराणसी और any temple which is for Hinduism, हिंदूज के बिलीफ, हिंदूज के रिलीजियस के लिए कुछ important अगर कोई एरिया हो, कोई एनी रिलीजियन, अगर एनी पास्ट का कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो, ओके, सच एज एग्जाम्पल ऑफ पलाशी और एनी एग्जाम्पल, ओके, विच इज हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट, वहाँ पर भी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो सकता है आसपास के एरिया के कंपैरिजन में, ठीक है. और इससे ज़्यादा और कुछ कुछ एरिया में हम लोग देख सकते हैं कि पॉपुलेशन हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट है, तो वो हिस्टोरिकल, सपोज ये हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंट एक प्लेस है, उसको सेंटर करके पॉपुलेशन वहाँ पर डेवलप कर रहा है, ठीक है. तो ये भी एक फैक्टर होता है, हिस्टोरिकल फैक्टर होता है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको अफेक्ट करता है. सो हियर टुडे आई हैव डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल फैक्टर्स, man-made factors and natural factors. On the next class or the next video, I will discuss about the remaining part, that means population growth and S6 pyramid, about this. So student, if you have not still now watched the chapter 1, please you can go to the description section and you can go watch from there. You will obviously can see their links are available there. So by clicking on the links you can see the first chapter's video. And if this video is helpful, then please like this video and share. And if you see that this channel is helpful for you, don't forget to subscribe this channel. Till then, bye.